Good morning, students. Today I am going to teach you lesson number 2, Little Red Hen. Little Red Hen. Children, this story is about Little Red Hen and her hard work. Little Red Hen is hardworking. Okay. Before we start the lesson, look here. Here, some pictures are here. Look at the pictures. They are young ones. We name them. Name the young one of each. Dog. What we called young ones of dog. Dog के बेबी को हम क्या कहेंगे? What we called young ones of dog. Puppy. 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 Cat. What we called young one of cat? Kitten. 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 Okay. What we called young ones of hen? Chicks. We called young ones of hen chicks. Okay. Duck. Duck के बेबी को हम क्या कहेंगे? Duckling. Let's start the lesson. Little Red Hen lived on a small farm. A duck, a cat, and a dog also lived with her. Little Red Hen was busy all the time. But the duck only wanted to swim in the pond. The cat only wanted to nap in a sunny spot. Nap means to sleep for a short time. थोड़ी देर के लिए झपकी लेना. Spot. Sunny spot means a place with a lot of bright light of the sun. Sunny spot ऐसी जगह जहाँ सनलाइट पड़ती हो, धूप आती हो. The dog only wanted to run and play. The dog only wanted to run and play. Children, let's understand the paragraph. Little Red Hen lived on a small farm. फार्म उसे कहा जाता है जहाँ एनिमल्स को पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है ताकि उनसे हमें कुछ प्रॉफिट हो. जैसे मुर्गियों के अंडों को बेचा जाता है. काऊ रखते हैं और काऊ से हमें दूध मिलता है, तो दूध को बेचकर उनसे पैसे कमाए जाते हैं. ओके. तो लिटिल रेड हेन स्मॉल फार्म में रहती थी. अ डक, अ कैट एंड अ डॉग ऑल्सो लिव्ड विथ हर. लिटिल रेड हेन के साथ कौन कौन रहता था? अ डक, अ कैट एंड a dog. Okay. Who lived on the small farm? Who lived on the small farm? कौन रहता था small farm में? Little Red Hen, a duck, a dog, and a cat. Okay. Little Red Hen was busy all the time. Little Red Hen was busy all the time. She is hardworking. वो हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहती थी. Who was busy all the time? Children, tell me. Who was busy all the time? Little Red Hen was busy all the time. But the duck only wanted to swim in the pond. Duck को
तैरना अच्छा लगता था और वो डक पॉन्ड में तैरते रहना चाहती थी। द कैट ओनली वॉन्टेड टू नैप इन अ सनी स्पॉट। द कैट मतलब बिल्ली को ऐसी जगह पे झपकी लेना अच्छा लगता था जहाँ पे धूप आती हो। द डॉग ओनली वॉन्टेड टू रन एंड प्ले। डॉग हमेशा खेलना और दौड़ना चाहता था। ओके चिल्ड्रन, टेल मी, व्हाट डिड द कैट लाइक टू डू? What did the cat like to do? The cat wanted to nap in a sunny spot. Okay. Now children, tell me, what did the dog like to do? Dog को क्या करना अच्छा लगता था? The dog wanted to run and play. And what did the duck want to do? The duck wanted to swim in the pond. Okay. The duck wanted to swim in the pond. One day, little red hen found some wheat seeds. One day, little red hen found some wheat seeds. Who will help me plant these seeds? She asked. एक दिन लिटिल रेड हेन को गेहूं के कुछ बीज मिले। गेहूं के बीज मिले, ओके। और उसने पूछा, Who will help me plant these seeds? कौन मेरी हेल्प करेगा इन सीड्स को लगाने में, उगाने में? I won't, quacked the wee brown duck. I won't, quacked the wee brown duck. Quacked, the sound of the duck. Wee means very small in size. Okay, तो जो duck है brown, छोटी सी ब्राउन डक, उसने कहा, I won't, मैं नहीं करूँगी। It's time to go to the pond. It's time to go to the pond. Children, it's is a short form of it is. Okay. It's time to go to the pond. डक ने कहा कि अभी मेरा पॉन्ड में जाने का टाइम है, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। I won't, poured the small yellow cat. Small yellow cat ने भी क्या कहा? I won't, मैं भी नहीं करूँगी। Poured the sound of the cat. कैट की जो आवाज़ होती है, जो आवाज़ निकालती है बिल्ली, उसे कहा जाता है poured. ओके। It's time to take a nap. It's time to take a nap. मतलब अभी मेरा झपकी लेने का टाइम है, अभी मैं थोड़ी देर सोऊंगी, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। I won't, growled the big black dog. Growled the big black dog. Big black dog ने क्या कहा? I won't. Growled, made a low sound in the throat. धीमी आवाज में कहना। Okay, it's time to chase my tail. Chase, to run after something to catch it. तो डॉग ने क्या कहा? It's time to chase my tail. आपने देखा होगा डॉग्स को कि वो अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना? तो डॉग ने कहा कि It's time to chase my tail. मैं अपनी टेल को पकड़ूंगा, मतलब उसे खेलना था। The dog wanted to run and play. Then I'll do it myself, said little red hen. तो little red hen ने कहा, Then I'll do it myself. I will do, मतलब मैं खुद अपने आप से कर लूँगी। And she did it. और उसने अपना काम कर लिया। The wheat grew tall and yellow.
the wheat grew tall and yellow. It was time to harvest the wheat. लिटिल रेड हैन ने सीड्स लगा दिए थे तो गेहूं उग गए थे और वो कैसे हो गए थे? टॉल और येलो, बड़े हो गए थे और येलो भी हो गए थे। कुछ टाइम के बाद फसल पक गई थी तो उनका कलर येलो हो गया था। ओके, इट्स टाइम टू हार्वेस्ट द व्हीट। अब टाइम था कि फसल को कट किया जाए। हार्वेस्ट मीन्स टू कट एंड गैदर अ क्रॉप। फसलों की कटाई करके उसे समेटना, उसे कहा जाता है हार्वेस्ट। ओके, हु विल हेल्प मी कट द व्हीट? आस्क्ड लिटिल रेड hen. अब लिटिल रेड hen ने पूछा, हु विल हेल्प मी कट द व्हीट? गेहूं की फसल काटने में कौन मेरी हेल्प करेगा? हु विल हेल्प मी कट द व्हीट? आई वोंट, quacked the wee brown duck. लिटिल ब्राउन डक ने कहा, आई वोंट, मैं नहीं करूँगी। इट्स टाइम टू ईट माई लंच। अभी मेरा लंच करने का टाइम है। आई वोंट, puared the small yellow cat. स्मॉल येलो कैट ने कहा, आई वोंट, इट्स टाइम टू क्लाइंब अ ट्री। मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकती, अभी मेरा पेड़ पे चढ़ने का टाइम है। इट्स टाइम टू क्लाइंब अ ट्री। ओके, आई वोंट, growled द बिग ब्लैक डॉग। इट्स टाइम टू रन एंड प्ले। बिग ब्लैक डॉग ने कहा, आई वोंट, मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इट्स टाइम टू रन एंड प्ले। मेरा अभी खेलने का समय है, मैं अभी खेलूँगा, दौड़ूँगा। देन I'll do it myself, said little red hen. And she did it. लिटिल रेड hen ने कहा कि इट्स ओके, I'll do it myself, मैं अपने आप कर लूँगी। And she did it. और लिटिल रेड hen ने अपना काम कर लिया। The wheat was ready to grind into flour. Flour means, फ्लोर का हिंदी में अर्थ होता है आटा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, है ना। तो जो गेहूं है वो अब रेडी हो गए थे, उसे हम ग्राइंड करके आटा बना सकते थे। ये लिटिल रेड hen ने फिर पूछा, लेट्स सी, हु विल हेल्प मी टेक व्हीट टू द मिल? She asked. What did little red hen ask? क्या पूछा little red hen ने? Who will help me take wheat to the mill? मिल तक ले जाने के लिए, गेहूं को मिल तक पहुंचाने में मेरी कौन हेल्प करेगा? I won't, quacked the wee brown duck. ब्राउन डक ने क्या कहा? आई वोंट, इट्स टाइम टू रेस्ट इन द सन। अभी मैं रेस्ट करूँगी। आई वोंट, puared द स्मॉल येलो कैट। स्मॉल येलो कैट ने क्या कहा? इट्स टाइम टू चेज अ बर्ड। अभी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मैं बर्ड को चेज करूँगी, मतलब बर्ड्स को पकड़ूँगी। It's time to chase a bird. Okay. I won't, growled the big black dog. It's time to scratch my fleas. Big black dog ने क्या कहा कि मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं अभी स्क्रैच करूँगा। स्क्रैच, रब विथ नेल्स, नाखून से किसी चीज़ को कुरेदना या मिट्टी को कुरेदना। ओके, फ्लीज, इट्स टाइम टू स्क्रैच माई फ्लीज। फ्लीज इसे कहा जाता है, इंसेक्ट होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट जो पशु पक्षियों के शरीर पर होते हैं। तो बिग ब्लैक डॉग ने कहा कि मैं अभी फ्लीज को स्क्रैच करूँगा जो मेरी बॉडी में है। ओके, देन आई विल डू इट माई सेल्फ, सेड
little red hen, and she did it. लिटिल रेड हेन ने कहा, ओके देन आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप कर लूँगी, और उसने अपना काम कर लिया। The wheat was made into flour at the mill. Who will help me make the flour into bread? She asked. जब गेहूं से आटा बन गया तो लिटिल रेड हेन ने पूछा, Who will help me make the flour into bread? इस आटे से ब्रेड बनाने में कौन मेरी हेल्प करेगा? I won't, quacked the wee brown duck. ब्राउन डक ने कहा, I won't, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी। It's time to eat green weeds. Weeds means wild plants growing where not needed. Weeds ऐसी घास जो कहीं भी उग जाती है। तो लिटिल ब्राउन डक ने कहा कि अभी मेरा ग्रास खाने का टाइम है, तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी। I won't, poured the small yellow cat. स्मॉल येलो कैट ने भी मना कर दिया, मैं नहीं कर सकती। It's time to clean my fur. Fur, soft thick hair on the body of some animals. पशुओं के शरीर में जो बाल होते हैं उसे कहा जाता है फर। तो येलो कैट ने भी कहा कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी। It's time to clean my fur. I won't, growled the big black dog. It's time to dig a hole. Big black dog ने कहा कि अभी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। It's time to dig a hole. Then I'll do it myself, said little red hen. Little red hen ने कहा, okay, I will do it myself, and she did it. और उसने अपना काम कर लिया। Little red hen took the bread out of the oven. It was hot and brown. It smelled so good. Little red hen ने ओवन में फ्लोर डाला और वहाँ से हॉट ब्राउन ब्रेड बाहर आए। एंड इट स्मेल्ड सो गुड, और उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। Who will help me eat this bread? She asked. Little red hen ने पूछा, Who will help me eat this bread? इस ब्रेड को खाने में कौन मेरी हेल्प करेगा? I will, shouted the duck. I will, shouted the cat. I will, shouted the dog. तीनों ने क्या कहा? I will, मैं करूँगी, मैं आपकी हेल्प करूँगी। Okay? Oh no, none of you, said little red hen. You didn't help plant the seeds, cut the wheat, make the flour, and bake the bread. Now you won't eat the bread also. Little red hen ने कहा, Oh no, none of you, मतलब आप में से कोई भी इस ब्रेड को खाने में मेरी हेल्प नहीं करेगा। क्यों? Because you didn't help me plant the seeds, cut the wheat. आपने मेरी किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं की, न तो प्लांट्स को लगाने में हेल्प किया, सीड्स को लगाने में हेल्प किया, ना ही गेहूं को काटने में, और ना ही हेल्प किया उससे आटा बनाने में। जब मैंने ब्रेड बनाया तो भी आप में से किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। Now you won't eat the bread also. अब आप इस ब्रेड को भी नहीं खा सकते हो। Little red hen and her 3 chicks ate up all the bread. Little red hen and her 3 chicks ate up all the bread. Children, tell me, who ate all the bread? Little red hen and her 3 chicks ate up all the bread. किस किस ने खाया था ब्रेड? लिटिल रेड hen ने और उनके तीनों उनके बेबीज थे, उन्होंने खाया।
Okay. Now tell me children, who did little red hen ask for help? उसने किससे किससे हेल्प मांगा था? The duck, the cat and the dog. Okay students, read the lesson carefully. Okay, thank you.